Uphaar Unplugged. Hello and welcome to Uphaar Unplugged Season 2 Episode 1. So today we have with us Ritu Rathi, an amazing human, a social worker and a mother of 100 girls. She is the founder of Ek Soch NGO, Divine Mrs. India 2019 and works for underprivileged children for education and is devoted towards making other people's life better. Thank you for accepting our invitation and being here on Uphaar Unplugged. It's my honor to have you and Same speak here. to you. Divya, pleasure is all mine. Alright, so मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप वो कर रहे हैं जो हम सब कलेक्टिवली करना चाह रहे हैं, तो hats off to you for that first of all. Thank you so much, but ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ. I think this is the duty of each and every citizen. So I'm just doing my duties. मुझे ऐसा लग रहा है. ऐसा कुछ extraordinary कुछ नहीं. Just my duties towards my country. Absolutely. So let's begin with the questions. Absolutely. My first question to you, Rituji, is that we want to know how did your journey start of philanthropy? So was there any event which happened and then आपको ये ख्याल आया कि आपको एक सोच NGO खोलना है या फिर उसमें काम करना है? See, I think छोटे से ही ना I have been seeing my parents, my family doing a lot of social work. बोलते हैं बच्चे कच्चे मिट्टी जैसे होते हैं, जैसे उनको आप शेप अप दे दो वो वैसे बन जाते हैं. So when I saw everything, ऐसा ही कुछ तो I felt कि no, this is something inside me. And then I got married in Surat. It's been 16 years now. Okay. And I had won Divine Mrs. India 2019. Right. But still after winning the pageant, that was a very big winning because I was the only homemaker in the entire lot. Rest all were the professional people. So that gave me little confidence in life. And yes, definitely social work. But I used to always feel a woman should be known for her work, not just beauty. Because I think work is something that adds on to the society and for the country. So I think I turned down to completely with the social work and I started enjoying it too. It एक होता है ना आपको हर इंसान कुछ ना कुछ हाई देता है लाइफ में. When I help people or when I do anything good for anyone, I get high of my life. Wow. Yes. So this is nice for me. Right. So I want to know what is the vision and mission of Ek Soch NGO? See, we started Ek Soch NGO around 3 years back. Okay. And it was the main vision was like we were like a lot of friends were sitting together. Maximum were professionals, some doctors, lawyers, teachers. So we were just talking about the society कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो we all should collectively change. And that's the need of the hour. Absolutely. So all of us we joined together. And BA Travel, ये जो journey है, it's been 3 years and now we have a lot of professional people who have joined with us. And I think main motive यही था कि किस तरह से जो एक सोच ये हमने जो नाम ही रखा था, it was basically कि किस तरह से जो एक कुछ सोच है अपनी society में, we need to change them. A thought can change everything. Definitely it's all about your thought process. क्योंकि हमें याद है when we started first time for HIV kids. अच्छा. तो उस आश्रम में कोई जाता ही नहीं था. People used to think कि शायद हम उन बच्चों को टच करें तो we will also have HIV. तो हम गए, हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया विद दोज किड्स, वी प्लेड विद देम एंड हमने वो सारे पिक्चर्स मीडिया पे शोकेस किया. एंड आफ्टर दैट आई सॉ लाइक लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग अप, सब उनको टाइम देने लगे. सो दिस इज जस्ट अ change of thought process. So you took the initiative. Yeah, kind of. Many people were doing it, but I think जब आप work करके उसे दिखाते भी हो लोगों को कि yes, I have done this. So it automatically affects the mind of many people who are seeing this. Influences it. It definitely influences because कहीं ना कहीं एक myth ही होता है जो that makes you step back. So when that myth is gone, you know the way. So it becomes much more easier. मुझे ऐसा लगता है. Absolutely. Okay. So हमने सुना है कि आप recently कश्मीर गए थे for बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ and हर घर तिरंगा. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे, आपने क्या किया और ऐसी कोई बात जो आप वहाँ से लेकर आए अपने साथ? See, Kashmir, this is my second trip. First time हम last year गए थे राखी बांधने ही. And we visited around 8 to 10 battalions. Okay. And जो राखी हम last year भी लेके गए थे, that was made by all underprivileged children, widows. So वो 7,000 Rakhis, we started from Surat, Gandhinagar, BSF headquarters, and then finally we went to Kashmir. Okay. So it was a very, very beautiful experience because we got to know that कि कितना उन लोगों को like the kind of sacrifice they are doing it for our family by staying far from their family. It's really something really big. And उस राखी जैसे emotional moment पे, like we were 3 girls who reached there. अच्छा. So जो हम 3 बहनें उनको राखी बांध रहे थे ना, they were into tears. And the best thing was अपने वॉलेट से जो वो 100 रुपये निकाल के हमें दे रहे थे ना हाथ में,
मतलब आई हैड टीयर्स इन माई आई एम आईज। गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ। या मतलब वो जो मोमेंट था ना, आई कुड फील कि हाउ मच दे मिस देयर फैमिली एंड दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ अस, फॉर अस, फॉर अस, डेफिनेटली फॉर अस, फॉर कंट्री, फॉर द नेशन। सो लास्ट ईयर बैठे बैठे तो दे बस लाइक कि तो मैं यहाँ बेटियों को हम बचा तो लेते हैं, पर बेटियों को पढ़ाने का भी अगर कोई जिम्मा ले ले, सो वो जो एक प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वो हम सब मिलके फुलफिल कर सकते हैं। So, like after Article 370, which has been removed by our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, I think this is one of the most impactful step we all could do it. अभी क्या, जैसे हमारी NGO गई है वहाँ पे, उन्होंने एक स्कूल को किया है ड्रॉप्ड एंड वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टडीज़। सो ये 370 हटने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है ये रहा है कि अब लोगों के अंदर वो एक फीलिंग आ गई कि नहीं, इवन वी कैन मूव अहेड एंड डू समथिंग फॉर कश्मीर। अदरवाइज पहले क्या बहुत ज़्यादा डर था लोगों के मन में कि भाई हम नहीं जा सकते। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल स्टेप टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड डेफिनेटली इफ वन NGO कैन गो, सेवरल NGOs कैन प्रोसीड फर्दर एंड टुगेदर हम सब एक साथ मिलकर बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। सो दिस इज़ जस्ट वन इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड एंड आई एम वेरी वेरी श्योर बहुत सारे NGOs अभी जा भी रहे हैं राखी लेके वहाँ पे, लाइक somebody is going on bike, somebody is going ऐसे भी, तो काफ़ी लोग जाने लग गए अब कश्मीर। So together I think all of us, all the NGOs, everybody can do a lot for the nation. Definitely. तो कितनी लड़कियां हैं वहाँ पे? वहाँ पे they have 100 girls. Okay. Wow. तो आपने 100 गर्ल्स को अडॉप्ट किया? Yes. Amazing. We got the opportunity with God's grace. मुझे ऐसा लगता है, तो वो था ना, ऊपर वाला ही देता है सारी opportunities. We are just the channel. We are just the channel. Absolutely. ओके, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस वहाँ पे हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहेगा और आप उसके कुछ टेक अवेज यहाँ पर लेकर आए हो? सी आई थिंक स्कूल में जब हम उन बच्चों को कर रहे थे तो उनके हाथ में जब हमने फ्लैग्स दिए थे, शायद वो बहुत ज़्यादा उस फीलिंग से अटैच्ड नहीं थे। अच्छा। बट जब हमने उन्हें वो फ्लैग्स दिए, उनके बारे में हमने जैसे एक राष्ट्र, जैसे नेशनल एंथम था, उसके बाद भी sang few patriotic songs with them. So वो जब गाना उन्होंने सुना या हमारे साथ थोड़ा बहुत गाए, so I could see that they were little much attached to this bonding, जो शायद अभी तक उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भी बताया जाता होगा। Confined थे वो लोग। या मे बी। सो वो जो फीलिंग है, मुझे लगता है इन बच्चों को एक्सपोजर अच्छा मिले तो डेफिनेटली दे कैन डू अ लॉट, एंड जो उनकी एक फीलिंग है अंदर जो दबी हुई है कहीं ना कहीं, वो बाहर और अच्छी तरीके से आ सकती है। सो आते वक्त एवरीबडी, यू नो, द गर्ल्स, कोई अपने बैग में से एप्पल निकाल के मुझे दे रहा था, अच्छा, कोई अपने बैग में से नोट लिख के दे रहा था मुझे, somebody got a pen for me. सो ये छोटी छोटी चीज़ें दे के, they were saying love you दीदी. सो वो जो फीलिंग थी म्यूचुअल, a girl to girl, I could feel that कि if they get a chance, they would definitely be some kind of IAS, IPS or something better. They just need a chance. तो वो एक kind of chance देने का हमें उन्हें opportunity मिला. And definitely आर्मी के साथ हमारा बहुत अच्छा रहा. 13 राष्ट्र राइफल मानसबल, hats off to them, salute to them. कि what we used to think एक आर्मी खाली सरहद तक ही रहता है, बट ऐसा नहीं है. वहाँ पे भी saw that they were so much worried कि वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वहाँ लोकल पीपल के बीच में कितनी कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए. तो ये सब फैमिली बन जाते हैं. So they become a family. So this is a very big thing. So वो सिर्फ आई थिंक नेशन की वैसे ही नहीं कर रही है रक्षा, इनसाइड द नेशन जो वहाँ के लोकल्स हैं उन सबके साथ भी उनका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल्स है. And we had a very good time with them. We could feel that emotional bonding with them, and definitely we had some emotional moments when both of us had tears in our eyes while tying Rakhi. So altogether it was a very very lovely trip. Yeah, it was something to cherish forever. Absolutely. ओके, तो हमारी सोसाइटी में बच्चे जो एक्सेल करते हैं स्टडीज़ में, सिर्फ उन्हीं को फेलिसिटेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. What do you want to say about those children who are differently abled or those who are earning the bread and butter for the family by the day and then studying by the night? See, I think this is one of the major issue we are having in our society right now. और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है कि ये जो एक रैट रेस में सब भाग रहे हैं ना, हमारा बच्चा 98% ही लाए, 97 ही लाए, तो बेस्ट कॉलेज, सब चीज़ उनको बेस्ट चाहिए अपने बच्चे के लिए, कहीं इस कंपटीशन में भी लैग बिहाइंड. अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो वन चाइल्ड सिक्योर 99.2% एंड उसने अपने पेपर को रीचेक के लिए दे दिया. अरे भाई कहीं तो स्टॉप हो जाओ. अब दिस इज़ अ काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट यू से, बट टोटली आई डिसएग्री टू फ्यू पॉइंट्स. मुझे ऐसा लगता है ये जो 90-98%, ठीक है, इफ़ यू आर विलिंग आप लाओ, देयर इज़ नो इशू इन दैट, आपको पढ़ना है पढ़ो. बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु गेट बिलो 50%, 60%, 40%?
मूवीज़ तो उन्हें भी बनाना होता है, उनके ट्रेलर्स होते हैं, मूवीज़ रिलीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो वी नीड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू देम। सो विद दिस वी रिसेंटली कंडक्टेड अ प्रोग्राम जहाँ हमने 90% को भी दिया था अवार्ड, 99 को भी दिया था, बट बिफोर दैट वी सिलेक्टेड अराउंड 60 चिल्ड्रन, दोज हु गॉट बिलो 50%, 40%, 60%. They used to reside in some slum areas जो दिन भर अपने पेरेंट्स के लिए काम करते थे, लाइवलीहुड अर्न करते हैं, एंड रात को जो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमने ऐसा सब हमने सिर्फ मूवीज में देखा था, क्योंकि सब हम घर में रहते हैं, Yes. हमें नहीं पता कि बाहर का स्ट्रगल क्या है। तो एक्चुअली जाके जो हम देखें अगर कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चे पढ़ते हैं और सिंसियरली पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनके घरों में लाइट नहीं होती है रात को। तो वो जो एक फीलिंग है, और ऐसे बच्चों को मैंने लाइव देखा है। आई हैव वेंट, मतलब मैं रात को गई हूँ, उनको विजिट की हूँ, मैंने देखा है कि वो कितने सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं। आई थिंक हमारे बच्चे से भी ज़्यादा सिंसियर है वो पढ़ाई को लेके, बट उनके पास उतना टाइम या फैसिलिटी रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, बिकॉज दे नो कि डे टाइम में उन्हें अर्न करना है अपने फैमिली के लिए। इन स्पाइट ऑफ दैट, अरे 40% ला रहे हैं, 50% ला रहे हैं, एटलीस्ट दे आर स्टडिंग, दे आर गिविंग एफर्ट्स। तो हमने ऐसे बच्चों को हमने सेलेक्ट किया, वी अवॉर्डेड देम, वी गेव देम ट्रॉफीज, मेडल्स, एंड आई थिंक वो उनके लाइफ का फर्स्ट ट्रॉफी होगा, एंड दे वर वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस थिंग। And we had few Divyang kids also in this. Okay. We had few blind children also who are extremely good yet lack of opportunities. And we are thankful to our Home Minister Harsh Sanghvi sir and our CP sir, Tomar sir, who were there for the program to motivate such students. So it was we are just trying, you know, ये जो चीज़ है, ये जो गैप है वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत हद तक पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट्स अ रिक्वेस्ट, पेरेंट्स प्लीज़ डोंट रन आफ्टर रैट रेस। अपने बच्चों को समझे कि बच्चे करना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। सब ज़रूरी नहीं है सब बच्चे IAS IPS बन जाएं, कुछ बच्चे होंगे जो नॉर्मल भी रहेंगे, येट दे विल हैव लॉट ऑफ टैलेंट्स, एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आई थिंक अगर हम काउंट ऑन करें तो सूरत में भी आप सब्जी भाई, सो मेनी, गोपाल, वी हैव मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स, खुद अंबानी। सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट 90% से आप टीचर बन जाओगे। थिंकिंग ही बहुत नैरो हो गई थी। जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है ना, बस उसी ही पेरेंट्स को समझना है, उसे समझ के उसे आपको एक्सप्लोर करना है, एक्नॉलेज करके अप्रिशिएट करना है। डोंट रन आफ्टर दैट रेस ऑफ परसेंटेज, मार्क्स, सिक्योरिंग फर्स्ट। आई थिंक दीज आर द रीजंस व्हाई किड्स कमिट इनटू सम शॉर्टकट्स, व्हिच आई थिंक पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज बहुत ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं शायद बच्चों के साथ, और एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर सेट हो तो ये इश्यूज ही नहीं आएंगे। ओके, तो आपकी अभी तक की पूरी जर्नी जो फिलैंथ्रोपी की रही है, उसमें से मुझे एक स्टोरी जाननी है, एक हार्ट टचिंग स्टोरी। आई थिंक आई लव स्टोरीज, तो मैं आपसे स्टोरीज पूछ रही हूँ, मगर एक ऐसी कोई स्टोरी जो आप कहीं पे भी कभी भी बोलेंगे एंड यू गेट दोज गूज़बम्प्स, यू want to repeat it again and again. See, I don't know about lot of my social life का तो नहीं, but I can remember my childhood, which is again a lesson for me in my life. I belong to a family which had everything in life. हमने बहुत highs देखे थे life के, when if anybody needed any kind of amount, my parents used to go and give them, हाँ ले ले तू जी ले ज़िंदगी। But suddenly a setback came into my life, into our life, and everything just got waved off. There were times when my dad just had 50 rupees in his pocket. Okay. And with that 50 rupees he had to manage the entire family. So that time वो जो moments हमने साथ मिलके बिताए हैं, ये एक जर्नी का आई थिंक मेरा सबसे वो था ना, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम समथिंग, सम मोमेंट्स इन योर लाइफ। तो उस वक्त जिस तरह से हमने अपनी लिविंग को सेट की थी ना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। फिर स्लोली स्टेडली ही वर्कड हार्ड, बहुत सारी चीज़ें हम सब ने मिलके की, एंड देन अगेन वी आर कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। बट कहते हैं कि लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, वन शुड नेवर गिव अप। सो दिस थिंग आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, एंड दैट वन मोमेंट, द वे वी यूज्ड टू मैनेज आवर होम्स, आवर लिटिल थिंग्स, जहाँ हम सैक्रिफाइस करते थे, बहुत सारी चीज़ों पे सैक्रिफाइस करते थे हम लोग लाइफ में उस टाइम। बट देन ठीक है, दैट हैज़ टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ रिलेशंस, वैल्यू ऑफ बीइंग अ गुड फैमिली। So at the end I think family is what really counts. बाकी money up and down, business up and down, सब चलता है life में, but if your family is there with you, you have everything in life. You can manage everything. Yeah, you have everything in your life. So just be with your family, spend good time with them. बाकी सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागोगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएगी.
So I think that is one few moments which I always remember in my life. And if I share, I think I will almost be in tears. So those are some good times of my life. I would not say कि bad times, worst times, because those times we got really bonded in the family. होता है tough times make you more bonded with the family. तो वो एक साथ सब कुछ करना, हर solutions निकालना, problems को face करना, कैसे करना है, आज morning सो गए, कल morning कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलके की. So that is the reason we came out of that very soon with God's grace. So and then we appreciate the good times more. Yes, definitely. And good times से ज़्यादा we get to know how important it is to have a family in your life. Because कोई कुछ भी बोल ले, nobody from outside will come and help you. That is for sure. People, they just know how to make the best out of your worst. So that is the only time family will stand by you, will support you. So in your good or bad times, be very assured that family is one thing that will be with you forever. कल ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें यही बताया कि कैसे हमारे बैड टाइम्स और गुड टाइम्स लिंक्ड है. तो उसमें ये बताया कि आपका रिसेंटली कोई गुड इवेंट आप रिमेंबर करो, और उसके बाद आपके थोड़े पुराने किसी मोमेंट में जाओ जहाँ पे आपने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया हो, और आप देखना कि वो दोनों चीज़ें लिंक्ड है. जब वो बुरा हुआ उसके बाद में उसने एक शेप लिया गुडनेस का. Yes, कर्मा. See, it always revolves. And कभी भी आपको कुछ अच्छा करना हो, अच्छा पॉजिटिव माइंड में लेना हो ना, always think of something which is lower than you. हम क्या अक्सर ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी है. हम ग्रैटिट्यूड है ही नहीं हम लोगों के अंदर आजकल. व्हाट वी थिंक इज कि हम सबसे पहले अपने से जो एकदम हाई पीच पे होता है ना, उसे ही देखते हैं. मुझे तो भाई वही बनना है. The grass is greener on the other side. It's always like that. और वो जो इतने हाई होप्स, हाई एक्सपेक्टेशंस हम लेके चलते हैं ना, तो हम नॉर्मल रह ही नहीं पाते अपने लाइफ में. We just think कि आज हमारा डे अच्छा इसलिए रहा because we saw some people who are lower than us, जिनको वो सब चीज़ें नहीं मिल रही, हमें मिल रहा है. जो वो ड्रीम से पहुंचना चाह रहे बट नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वट एवर. सो अगर ये हम ग्रैटिट्यूड अपने मन में रखें ना कि एवरी डे वी आर गेटिंग समथिंग गुड एंड द लाइफ वी आर इन इज द बिगेस्ट थिंग, तो वो फिर इश्यूज नहीं आते. लाइफ इटसेल्फ इज अ गुड प्रेजेंट. डेफिनेटली. यार हम जी रहे, खा रहे, पी रहे, और क्या चाहिए लाइफ में यार इससे ज़्यादा. फिर तो इट्स अ ग्रीडी प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होता है. दैट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. कहीं ना कहीं तो थमना ही होगा. सो दैट्स इट. ओके. वन बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड आपकी इस पूरी जर्नी में, जहाँ पे आपने लोगों की हेल्प की, बहुत कुछ आपने देखा है अभी तक, कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है, कोई एक ऐसा स्ट्रगल जो आपने फेस किया और आप चाहते हो अब सोसाइटी को बताना कि आप कैसे कोई और फेस ना करें या कैसे कोई किसी की हेल्प करे? वर्किंग वुमेन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. बीइंग अ वुमेन is the biggest challenge right now. Women, that too, when you have to manage a home, when you have to manage a family, your work, society, because what happens now, you are no more a private thing. It becomes a public thing. And when you step out in public, you have to face a lot of things. घर आओ तो you have to make it a point, whatever tension you have outside, you have to just leave it outside and come inside. Because kids would be there to hug you, to kiss you. Mom, I want to do this, I want to do this. Homework करना है, ये करना है. तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलके करना पड़ता है. And when you step out, you have 10 things to do. Wearing different hats. Yeah, you have to wear it, and people become judgmental at times. So, being a woman, balancing your work, your family, it's the biggest task I feel. So, but definitely I would give credits to my family, my husband, who have been my biggest support forever. They know कि हाँ, she can do it, she will manage it in any ways. So that has made my work much more easier. So that was my personal challenge. I think outside challenge I would definitely say कि ये again तो students के साथ अभी मैंने COVID के दौरान देखा कि बहुत सारे youth, especially they are taking shortcuts towards few worse things. चाहे वो आप उसको depressions बोल लो, चाहे एक mental level बोल लो, peer pressure बोल लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी बहुत चैलेंजिंग हो चुका है यूथ के साथ. वो हैज़ टू बी फेस्ड वेरी नाइसली. अभी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट मेट वन ऑफ माई काउंसलर फ्रेंड. शी वॉज लाइक ए मैक्सिमम पेशेंस आई हैव इज टीनेजर्स. दे आर टीनेजर्स. सो दिस इज़ वन इशू विच teenagers are facing. They're not getting the right direction. Right direction नहीं मिल रहा है. पेरेंट्स को कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि पेरेंट्स उनको समझ नहीं पा रहे. ये उनको लग रहा है बट ऐसा नहीं है. पेरेंट्स उनको तब समझेंगे जब आप पेरेंट्स के पास जाओगे अपने प्रॉब्लम्स को लेके कि आई हैव सो एंड सो प्रॉब्लम, मॉम डैड प्लीज सॉल्व इट आउट.
बट ये जाके बोलने में भी यू नीड लिटिल करेज या करेज से भी ज़्यादा पेरेंट्स को बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहिए कि तुम कुछ गलत या तुम कुछ गलत भी करोगे तो आई बी देयर विद यू नो मैटर व्हाट। तो ये पेरेंट्स अगर डाले तो शायद बच्चे उठ के आ जाए। तो ये उनको फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। यस डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अगर वो सीनियरिटी रहेगी तो वो वैसे सीनियर ही रह जाएंगे कि नहीं वहाँ नहीं जा सकते। वो जनरेशन गैप, यस वो जनरेशन गैप हैज टू बी ब्रिज्ड एंड दिस इज अ म्यूचुअल थिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगर इसको किया जाए आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क राइट नाउ इज दिस, बिकॉज इफ यू कंसल्ट एनी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर काउंसलर उनके पास मैक्सिमम पेशेंट्स टीनेजर्स और यूथ ही हैं अभी। So this is a kind of major problem than COVID, I would say. I totally agree क्योंकि पहले उतना कंपटीशन नहीं था। पहले 70s वाले भी खुश थे, सब खुश थे, 60s वाले भी खुश थे, पेरेंट्स खुश थे। हाँ अब पेरेंट्स के कंपटीशन हो गए यार, उसकी डॉटर ने इतना लेके आए तो मैं क्यों नहीं। शर्मा जी का बेटा। यस 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 दिस इज अ मेजर, मतलब मेरा सबसे बड़ी बीमारी है क्या कहेंगे लोग। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना दिस हैज टू बी सॉर्टेड आउट। सो बहुत कुछ क्लियर बहुत कुछ क्लियर कर सकता है। मेन थिंग इज द अपब्रिंगिंग ऑफ योर ओन चाइल्ड यूथ, वो आई थिंक इट्स अ मेजर चैलेंजिंग टास्क राइट नाउ। ओके सो वी ऑल नो, जैसे कि हमने अभी यूथ की बात की, वी ऑल नो दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ population, that is around 66% of the whole population of India. So what message would you like to give to the youth listening to this podcast? See, one thing I would definitely love to say, जैसे संजय रावत जी बोलते हैं, always give your best. मतलब आप कुछ भी दो लाइफ में, give your best. आप कुछ भी दे रहे हो, whether you are preparing for your exams, whether you are doing a cooking thing, whatever you are doing anything in your work, whether even if you are stepping out of the house, for any little thing, आप जो भी कर रहे हो ना, आप अपना बेस्ट करो। नथिंग कैन बीट दैट, यू हैव टू बी द बेस्ट, बिकॉज वो जो एक फोकस होता है ना माइंड में कि आज मुझे अपना बेस्ट ही देना है, बेस्ट से 0.01 भी कम नहीं देना है। अगर आप बेस्ट दोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स ही आएंगे आपके पास। अगर आप देने में ही कमी रख दोगे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि गॉड सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, फिर बोले कि भगवान आपने हमें दिया नहीं। हाँ। तो भगवान तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता कहीं से भी। इट इज ऑल दैट यू ओनली हैव टू डू इट। सो इट इज योर लाइफ, योर टास्क, योर हार्ड वर्क which has to be the best. It's your journey. Yeah, it has to be the best because it's your journey, so you have to shape it up to the best. And definitely I would love to say कि सपने देखो, because सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जो सपने देखते हैं। एक विजन रखो एंड बहुत कड़ी मेहनत करो उसे हासिल करने में, क्योंकि जो कहते हैं ना एक शून्य से शिखर तक का जो सफ़र होता है ना, वो अगर आपने तय करना है तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। नथिंग विल कम टू यू कि हाँ भगवान ने आज भगवान मुझे दे दे, तू दे दे, हाथ जोड़ ले, कितना भी जोड़ ले, इट विल ओनली कम व्हेन यू वर्क फॉर इट। सो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर ऑल योर ड्रीम्स एंड देन नो वन कैन स्टॉप यू। Absolutely. This is what I feel. So here comes our rapid fire round. Yes, I'm looking and forward. This is going to be very much fun, definitely. So आपके पास 30 seconds होंगे एक भी हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और फोन अ फ्रेंड क्विक होना पड़ेगा। ऑप्शन है फोन अ फ्रेंड? फोन अ फ्रेंड नहीं है। You are your only friend here. Okay, so let's begin. Number 1, favorite holiday destination? यूरोप। वहाँ कहाँ पे? यूरोप में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। Okay. कोई वहाँ की मेमोरी? We had an apartment that was absolutely near to Jungfraujoch. Okay. And we totally love. I am a scenic person, so I totally adore nature. Vision. Yeah. Okay. Are women complicated? What? Are women complicated? Yes or no? No. Okay. A big no. A big no. A big no. A big no. I think men are complicated because they fail to understand women. Women are the simplest nature have ever made in life. You know, these are the most simplest thing. So I think men are complicated because they fail to understand women. समझने की ज़रूरत है, बहुत soft है, मुझे तो ऐसा लगता है. Right. So giving presents or getting presents? Giving. All right. Of course. I'm always a giving person. So do you Instagram your food? I Instagram my food? No. I am a very dal chawal type of a person. Acha. I just like my desi khana at home and happy with that. Okay. So one question: who inspires you? My dad, my father. One thing you adore about him?
He is always confident about whatever I do in my life. He will never say कि you are wrong. He will always say you are right. He's supporting. He is very, very supportive, and the best part is he has full confidence in me. Even if I'm wrong, he would never tell me I'm wrong, because he knows if he would say I'm right, I would somewhere understand that I'm wrong. Okay. So he has that much of confidence in me. Okay. So, would you rather choose beauty over brain or brain over beauty? Brain over beauty. Right. You mentioned this in the earlier Yes, definitely. Beauty is that fades up. Brain is something that no one can take from you. Beauty तो क्या एज है, आएगी चली जाएगी. ब्रेन कोई नहीं ले सकता आपसे. It's the beauty of the brain. That's yours. वही एक चीज है जो तुम्हारी है. Okay, so my last question. 4 words about Uphaar. Very friendly. Box of kindness. Divya is adorable. Thank you so much. And a group of youth doing very good and serving the society. Thank you so much. Thank you. So it's my pleasure to have you here. We had a great conversation. I Same here. personally learned a lot from you. Same here, And Divya. the whole generation, I think, is getting inspired from you in one way or the other. That is for sure. Same here, Divya. When I had really, I had a good opportunity to transact, have a good change of opinion with all of you. So, and it's always a learning process. हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हो. So this should go on and on. Absolutely. Thank you, Rituji. Thank you you so much. Pleasure is all mine. See you.